आईसीसी से 4 घंटे मुज़ाकरात के बाद चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि ये फैसला वज़ीर आज़म करेंगे कि भारत से मैच खेलना है या नहीं। लाहौर में आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। अगले चंद घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। फ़रीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात 4 घंटे से ज़्यादा जारी रहे। ज़राए के मुताबिक आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालिबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के अज़ाले के लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया। आईसीसी और बीसीबी के माबैन तजावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहमी राबता कार के फ़राइज़ अंजाम दिए। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना हो गए। बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए वापस रवाना हो गए। बाहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद आज दोपहर आईसीसी और बीसीबी का दोबारा राबता होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को आईसीसी के वफ़द से होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह करेंगे। मैच खेलने से मुतालिक हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। आईसीसी वफ़द गुज़िश्ता रोज़ मैच खेलने की दरख्वास्त लेकर चेयरमैन पीसीबी के पास लाहौर आया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। The leprosy elimination strategy 2024 to 2030 launched by MALC is a national cause. I wish to assure you that the government of Sindh stands firmly with MALC in achieving its goal. The international support, particularly the use of modern technology and global expertise, is highly appreciated and essential to this mission. I extend my heartfelt congratulations to entire MLC team for 7 decades of continuous service to the poorest of the poor, reaching even the most remotest corners of the country. It gives me great pleasure to see the local team trained and inspired by Dr. Ruth Faw is carrying her legacy forward with the same dedication, compassion, and excellence. My journey with MALC actually began when I was in school. I remember we used to collect from our pocket money, put aside a little amount, and contribute to MALC. This was a long time ago. I don't know what difference that made, but I'm sure the entire. And then, for almost 4 decades, I was cut off. In 2017, on the 10th of August, I heard that Dr. Ruth Faw had passed away. And on that day, I went to the Mary Adelaide Center for the first time in Sadr. And I did not know that Mervyn was working for Dr. Ruth Faw, and I met him there. And now it's been almost 10 years now, a little less than that the government of Sindh, and I have worked closely with the Mary Adelaide Leprosy Center. Let me assure you, Mervyn, and let me assure the Mary Adelaide Leprosy Center team that in the government of Sindh, you've got a partner who's going to be with you, not only till 2013, or hopefully before that, when we eradicate leprosy from Pakistan, but thereafter also, because the good work that the MALC is doing, the good work of Dr. Ruth Faw that you're carrying forward, the government of Sindh will always partner with you. And we're looking for other organizations like MALC who have the compassion to work for the poorest of the poor, for the vulnerable, for the disadvantaged. And the government of Sindh has made a commitment that we will work along with all these organizations, and especially a Department for Empowerment for People with Disabilities, which again we had formed in 2017. Before that it was called something else, but in 2017 we made a new law and we created this department. And since then we've tried, and I'm very proud to say, I don't remember the exact number, but there must be in hundreds now, organizations that we're working with, organizations like Mary Adelaide Leprosy Center, more than 100.
and the work that all these organizations are doing are actually commendable, and they're making our job easy. As I've always said that, making financial resources available is the easiest thing. Finding people with compassion to spend it properly is the most difficult, and in MALC we've found one of such organizations. So please carry your good work forward. We will always be there along with you. And before I end, I want to thank Mohan Lobo and the MALC for inviting me here today. It gives me, it just strengthens my resolve to work harder for the vulnerable, to work harder for the disadvantaged, and inshallah, Government of Sindh will continue doing this. Thank you very much, MALC. Congratulations on your 70th celebration, the Platinum Jubilee, and may your good work continue till humanity is there. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir. I kindly request you. वेलकम बैक। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस अवामी फेस्टिवल में हर उम्र के मर्द व ख़वातीन ने भरपूर दिलचस्पी ली। दूसरे शहरों के अलावा बैरून मुमालिक से भी लाखों अफराद बसंत फेस्टिवल में शिरकत के लिए लाहौर पहुँचे। गैर मुल्की सफ़ीरों और हुकूमती शख्सियात ने भी बसंत को खूब इंजॉय किया। इस दौरान अरबों रुपए का कारोबार भी हुआ। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर में पंजाब के सकाफती रंगों से मुज़य्यन 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों और रानाइयों के साथ खत्म हो गया। 3 दिन और 3 रातें लाहौर में मेले का समा रहा। शहर की फिजा रंग बिरंगी पतंगों से अटी रही, जबकि बू काटा के नारे माहौल को दिलफरेब बनाते रहे। पतंगों की उड़ान, ढोल की थाप और कहकहों की गूंज ने शहर को जश्न का रूप दे दिया। बसंत फेस्टिवल में हर उम्र के मर्दों खवातीन ने भरपूर दिलचस्पी ली। वसी पैमाने पर पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त के अलावा भंगड़े और खाबे भी चलते रहे। खूब हल्ला गुल्ला हुआ। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी सजावट की गई। रवायती खाने, गाने और महफिलों ने त्यौहार को मजीद यादगार बना दिया। लाहौर की छतों पर 3 दिन तक खुशियों के दिए जलते रहे। हवा में उड़ती पतंगे जैसे ख्वाबों के पर बन गईं। ढोल की थाप पर रक्स करते नौजवानों ने त्यौहार को जिंदगी की धड़कन बना दिया। मुल्क भर से लाखों अफराद लाहौर पहुंचे। बैरून मुल्क से भी बड़ी तादाद बसंत मनाने आई। गैर मुल्की सफीरों और हुकूमती शख्सियात ने भी बसंत को खूब इंजॉय किया। गैर मुल्की शख्सियात ने पंजाब की सकाफत, खानों और लाहौरियों की जिंदा दिली का इतराफ किया। बसंत फेस्टिवल में शोबिस से वाबस्ता शख्सियात और खिलाड़ियों ने भी भरपूर शिरकत की। बसंत फेस्टिवल ने लोगों को मिल बैठने का मौका फराहम किया, जिससे अपनायत और मोहब्बतें परवान चढ़ी। बसंत का रंगारंग मेला खत्म हुआ। इस दौरान अरबों रुपए का कारोबार हुआ। शहरियों का कहना है कि बसंत लाहौर की पहचान है। एहतियाती तदाबीर के साथ ये फेस्टिवल हर साल होना चाहिए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कीमाने ने कहा है कि बसंत फेस्टिवल के अख्तिताम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। एक बयान में CCPO लाहौर ने कहा है कि दुकानदार पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वुर होगी। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में दूसरा मैच कल USA के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम की आज की क्या मसरूफियात रहेंगी, कोलंबो से अपडेट करेंगे सुहेल इमरान। जी, ICC T20 वर्ल्ड कप में कल कोलंबो में पाकिस्तान ने अपना दूसरा ग्रुप मैच USA के खिलाफ खेलना है। यहाँ पर सिनहाली स्पोर्ट्स क्लब में पहले मैच में नीदरलैंड्स को पाकिस्तान टीम ने शिकस्त दी थी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान टीम ने आराम किया था। होटल में ही जिम सेशंस हुए थे। आज यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच से कबल एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है कोलंबो क्रिकेट क्लब में, जो कि सिनहाली स्पोर्ट्स क्लब से थोड़ा से फासले के ऊपर है। और कल जब के मैच खेला जाना है, शाम के औकात में पाकिस्तान का ये मैच है सिनहाली स्पोर्ट्स क्लब में, तो दिन के औकात में बारिश नहीं है और शाम के औकात में भी बारिश का बहुत मामूली खदशा जाहिर किया गया है, पेशगोई की गई है।
पाकिस्तान जूनियर एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप साद हबीब ने जीत ली है। इस कामयाबी के साथ साद हबीब ने फेल्डो सीरीज के एशियन फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। 3 रोज़ा इवेंट में अब्दुल मोइज खान एक स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। मुल्तान में होने वाली 3 रोज़ा पाकिस्तान जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में साद हबीब ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और 12 अंडरस्कोर के साथ टाइटल जीत लिया। अब्दुल मोइज खान एक स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर है। शामीर माजिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जूनियर चैंपियनशिप टाइटल जीतने की बदौलत साद हबीब ने अप्रैल में होने वाले फील्डो सीरीज के एशियन फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की ओहदे से सबकदोशी और भारत में खुद साख्ता जलावतनी के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। माहिरीन का कहना है कि इंतखाबात बांग्लादेश के मुस्तकबिल की समत का फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ इन इंतखाबात पर खुसूसी नज़र रखे हुए है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद बांग्लादेश से खुसूसी रिपोर्ट्स और मनाजिर जियो की स्क्रीन पर लाएंगे। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी एजाज सैयद बताएंगे। जी, बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर 12 फरवरी को 13वें इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इस हवाले से इस वक्त हम ढाका में मौजूद हैं। ढाका में जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, वो अपने लास्ट लेग में है, अपने आखिरी हिस्सा में है कैंपेन के, क्योंकि कल रात को 7 बजे कैंपेन का आखिरी वक्त है। कैंपेन कल रात 7 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे कबल ढाका में जो मैदान है वो सज रहा है। मैदान बल्कि सज चुका है, क्योंकि जो 3 मरकजी मेन स्ट्रीम जमातें हैं जिनको तस्वर किया जा रहा है कि असल मुकाबला इन 3 जमातों में है। अवामी लीग तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से शिरकत नहीं कर रही, इलेक्शन में नजर नहीं आ रही, लेकिन जो बड़ी जमातें हैं अवामी लीग के बाद जो कि इन इलेक्शन में शिरकत कर रही है, उनमें BNP है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके बाद जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर नौजवानों की जमात है नेशनल सिटीजन पार्टी। ये तीनों जो जमातें हैं, इन तीनों जमातों के रहनुमा ढाका से मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए ढाका में अगले 24-48 जो घंटे हैं वो बड़े बिजी हैं, जिनकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आपको जगह जगह बैनर्स नजर आ रहे हैं, इंतखाबी रैलियां नजर आ रही हैं। ढाका काफी एक्टिविटी का मरकज बना हुआ है। जी, आज का दौर नुमाइश का है, जिसकी गुड्डी चढ़ गई, लोगों की तवज्जो बस उसी पर रहती है। अब चाहे वो सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट हो या शाम को चाय के साथ खाए जाने वाले स्ट्रीट फूड। जियो की हकीकत आशना चुलबुली पेशकश देखिए। नाजरीन, मैं इस वक्त शहर के सबसे महंगे हॉल में हूँ, जहाँ स्ट्रीट फूड अपनी कीमतों में इजाफे का जश्न मना रहा है। यहाँ घी की खुशबू नहीं बल्कि पैसे की बू आ रही है। ओए बदतमीज, अंधा है क्या? देखता नहीं मेरे सूट पर सलवट पड़ गई है। माफी चाहता हूँ सब बस, मैं तो बस। तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? तेरी औकात क्या है? 20 रुपए किलो वाला गंदा आलू और मैं अब 70 रुपए का स्नैक हूँ। ऐ खुदा, ये वही समोसा है जो मेरे बगैर अधूरा है। मेरे नाम से उसको पहचान मिली है और आज ये मुझे ही मिट्टी कह रहा है। क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो मियाँ आलू? कचौरी जी, आप भी मेरी तरकारी के बगैर तो आप सूखी रोटी हैं। बाबा, वो पुराना जमाना था, अब मैं हाई टी की जीनत हूँ। अब मेरा साथ दही की चटनी नहीं, इम्पोर्टेड सॉस है। समोसा साहब, आपकी पूरी शिनाख्त ही आलू वाला समोसा है। आपके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो इसी आलू का मरहून मिन्नत है, और आज आप इसी आलू से ये हिकारत कर रहे हैं। क्या आप अपनी औकात भूल गए हैं कि आप कहाँ से उठे थे? मियाँ जर्नलिस्ट, इसे औकात भूलना नहीं, तरक्की करना कहते हैं। जमाने बदल गए हैं। अब मैं सड़क के किनारे अखबार के कागज पर लेटने वाला समोसा नहीं रहा। मैंने अपना मायार जिंदगी बदला है। मायार या कीमत? एक जमाना था जब आप गरीब के दोपहर का खाना थे। 10 रुपए में गरीब 2 समोसे खाकर पेट भर लेता था। सच तो ये है कि आज भी महंगाई के बावजूद आपकी लागत 10-15 रुपए से ज्यादा नहीं। फिर आप 70 रुपए में क्यों बिक रहे हैं? ये सरासर लूटमार है। अरे भाई, आप भी ना हर जगह 70 का नहीं हूँ, कहीं कहीं मैं अब भी 40 का दस्तयाब हूँ। 40 का? जनाब, वो जो 40 का है वो आपके साइज का आधा है। उसे तो देखकर लगता है कि सूखे की बीमारी हो गई है। वो समोसा कम और पकौड़ा ज्यादा लगता है। जरा बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स को तो देखो, वो किलो की चीज को 800 ग्राम करके बेच रहे हैं और कीमत भी बढ़ा दी है। ये कारोबारी हिकमत अमली है। जब बड़े बड़े सीट ये कर सकते हैं तो एक छोटा सा समोसा अपनी चादर देखकर पांव क्यों न फैलाए? तो वो जो आप काले तेल में गोते लगाते हैं, आपका तेल मायारी है ना मसाले? क्या इंतजामिया आपको कुछ नहीं कहती? फूड अथॉरिटी कहाँ है? साहिब, इंतजाम चलाने वालों की भी तो अपनी जरूरियात होती है। जब मेरी कीमत बढ़ने से उनकी जेब की जरूरत पूरी हो जाती है, तो वो मेरे तेल का मायार क्यों देखेंगे? वो आंखें बंद कर लेते हैं, मैं कढ़ाई में कूद जाता हूँ। सादा सा फॉर्मूला है। तो फिर आप अपना मुस्तकबिल कैसा देखते हैं?
गरीब कहाँ जाएगा। मुस्तकबल बहुत रोशन है, रमजान आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सेंचुरी मुकम्मल करूं, यानी पूरे 100 रुपए का हो जाऊं। इंतजामिया का भरपूर आशीर्वाद हासिल है, इसलिए कोई डर नहीं है। और गरीब तो मर जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, भूख से मजबूर होकर मुझे ही खरीदेगा। मेरी खुशबू उसे खींच लाएगी और मैं इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसकी जीप खाली करूंगा। सियासतदानों को भी तो स्टंटिंग का मंत्र पढ़ना है, मौका तो मैं ही दूंगा।